Hello children, I am Suchita ma'am. So now today we are going to start with your first supplementary lesson, that is the name is The Lost Child. Lost you understand ना, जो खो गया था उस बच्चे की कहानी हम इसमें देखने वाले हैं, right? If you have books you can open them and sit. But if you don't have books, you don't have to worry at all, because I'm going to show you page by page and then I'm going to tell you the story. So the lost child, एक जो बच्चा होता है वो कहाँ पे जाता है? He goes to a fair. Fair यानी कि मेला, मेले में जाता है पेरेंट्स के साथ, and he's very happy, excited, he wants sweets and toys. Okay, everything is displayed there, arrange किया हुआ है, but his parents don't buy. पेरेंट्स मना कर देते जब वो मांगता है तो. Then why then does he refuse when someone else offers them to him? अभी क्या है, स्टोरी के नाम से ही पता चल जाता है कि the child gets lost. So see, sometimes in life we take things for granted. We don't really think too much about our parents because we think they are going to be there always for us. So that is called as taking them for granted. But when he lost them, then what happened? All the sweets and toys became meaningless. Could he enjoy the sweets and toys without the parents? No. इसलिए when somebody else offered them to him, he could not enjoy. तो ये स्टोरी हम देखेंगे, ये शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है. It was a festival of spring. कौन सा टाइम था? Festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes, the alleys emerged a gaily clad humanity. गलियों में से चलता हुआ एक gaily clad humanity, मतलब एक छोटा सा बच्चा जो कैसे ड्रेस था, clad यानी कि dressed happily, bright कलर के कपड़े पहने थे. Some walked, सब लोग ऐसे जा रहे थे मेले में, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ना. Some walked, some rode on horses, बहुत सारे लोग जा रहे थे. Others sat being carried in a bamboo and bullock carts. कोई बुलक कार्ट में जा रहे, कोई कैसे जा रहे, हॉर्सेस पे जा रहे, कोई चल के जा रहे, सब गांव के लोग मेले में जा रहे. One little boy ran between his father's legs. He was such a small child, है ना, फादर के पाँव में से भी वो पास हो जाता था. Brimming, B है यहाँ पे, BRIMM, brimming over with life and laughter. He was very very happy because he was going to the Mela. See, this is our small little child. Okay, so he was very happy and he is attracted by all the things that people are selling. Come child, come, called his parents as he lagged behind. Constantly he was lagging behind, he was keeping behind. Fascinated, attracted. Fascinated का मतलब क्या है? Attracted. What was he attracted by? अभी एक एक नंबर देते जाना है. मैंने फर्स्ट नंबर दिया है किसको? टॉयज को. टॉयज इज नंबर 1. ये क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या उसको अच्छा लगा. तो सबसे पहले उसको क्या अट्रैक्ट किया? फैसिनेट किया यानी कि अट्रैक्ट किया, टॉयज. इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. टॉयज के स्टॉल के पास खड़ा रहा तो पेरेंट्स ने क्या बोला? कम चाइल्ड कम, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो. तो वो बेचारा टॉयज को छोड़ के उनके साथ चल दिया, लेकिन उसके आंखें लिंगरिंग रही, वहीं पे रुकी रही. द आईज वर कॉन्स्टेंटली ऑन द रिसीडिंग, जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे ना. स्लोली द टॉयज वर गोइंग अवे, इसलिए रिसीडिंग. And his eyes were lingering, they were staying on the toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in his eyes. His father looked at him with a cold stare of refusal. उसके आँख से ही उसको पता चल जाता था कि वो मना करते कि कुछ नहीं लेना है. I want that toy, he pleaded, he requested. Pleaded का मतलब क्या है? Requested. His father looked at him red-eyed, angrily. Red-eyed means angrily. His father looked at him in his familiar tyrant's way. जैसे एक dictator देखता है ना, वैसे वो father angrily देखता तो बेचारा चुप हो जाता. His mother melted by the free spirit of the day, but mother was thinking कि free spirit of the day मतलब मेले का एक happy day है. तो मदर कैसी थी? टेंडर, सॉफ्टर. मदर थोड़ी सॉफ्ट थी.
एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, उसने उसका हाथ पकड़ लिया बच्चे का और बोला लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, वो सब भूल जा और आगे देख, सब चीज़ें एंजॉय कर। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसने उसका ध्यान दूसरी तरफ लेके गई मम्मी ताकि उसको दुख ना हो, और उसने उसको क्या दिखाया, मस्टर्ड फील्ड। इफ़ यू हैव सीन मस्टर्ड मतलब राई, राई का जो फील्ड होता है ना उसमें एकदम मस्त वाले येलो फ्लावर्स आते हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड येलो, ऐसे उसके फ्लावर्स होते हैं। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड, ऐसे एकदम बहुत बड़ी जगह पे वो मस्टर्ड फील्ड वहाँ पे था और येलो फ्लावर्स ग्रीन फील्ड में बहुत अच्छे लग रहे थे। सो द मदर इज ट्राइंग टू change his mind by taking his attraction to something else. Now there were also dragonflies, उसको क्या दिखा, अभी पहले हमने टॉयज मार्क किया है, फिर हमने क्या मार्क किया, देखो टॉयज के बाद मस्टर्ड फील्ड उसने देखा। ऑन द वे क्या क्या देखा, हाँ अभी मेले में पहुंचा नहीं है। ऑन द वे ही सॉ द टॉयज, ही सॉ द mustard field, then he saw the dragonflies. Dragonflies, one type of insects, were bustling, they were flying, making noise and flying about on their gaudy, G-A-U-D-Y, gaudy means bright colors है उनके, purple wings, intercepting the flight of a lone bee or a butterfly. competition लगी हुई थी bee, butterfly और dragonflies में, किस चीज़ के लिए, in search of sweetness of the flowers, flowers का मध यानी कि हनी सक करने के लिए उनके अंदर कंपटीशन लगी हुई थी। चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, तो शी वाज स्टार्टेड लुकिंग एट देम टिल वन ऑफ देम कुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, वो अपने विंग्स फ्लैप करते हुए अप एंड डाउन करते हुए चले जाते थे up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call. वो ऐसे उनके पीछे पीछे भी दूर जाने लगा फ्लाइज पकड़ने के लिए, बटरफ्लाइज पकड़ने के लिए, तो फिर से मम्मी ने बुलाया। कॉशनरी का मतलब वार्निंग कि कहीं खो जाएगा ना, अकेला यहाँ वहाँ मत जा, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। तो नाउ दे he ran towards his parents gaily, but he was a happy child and walked abreast of them. थोड़ा थोड़ा उनके आगे चलने लगा, abreast means ahead. For a while, थोड़ी देर चला, फिर किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएगा तो he will lag behind, he will stay behind. Being however soon left behind, attracted by the little insects. फिर इसको insects और worms दिखे, ये चौथी चीज़ है, along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. कौन आ रहा था hiding place में से बाहर, insects and worms. Come child come, बच्चे बार बार मम्मी पापा उसको बुलाते हैं. Call from the shade of the grove मतलब where number of trees are there together, है ना, उसको क्या बोला जाता है, ग्रू. Some group of tree, ग्रू इज व्हाट, ग्रुप ऑफ ट्री, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे तो शेड था, तो वहाँ पे ये पेरेंट्स शेड के अंदर नीचे पेरेंट्स बैठ गए हैं. सीटेड themselves on the edge of a well के पास बैठ गए हैं. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो वो पूरे बहुत सारे पेड़ थे तो उसमें से फूल नीचे गिर रहे थे. Forgetting his parents, he began to gather the raining petals. Petals मतलब पंखुड़ियाँ. तो फिर से उसका ध्यान बढ़ गया, तो फिर से वो फ्लावर्स गैदर करने लगा. But lo, he heard the cooing doe. इतने में उसका ध्यान किसके पास गया, डो के ऊपर, एक कबूतर की तरफ होता है, तो उसके पास चला गया. Ran towards his parents shouting the doe. तो डो देख के वो अट्रैक्ट हो गया. The raining petals dropped from his forgotten hands. एक चीज़ पर से उसका ध्यान दूसरी चीज़ पर चला जाता है तो पहली चीज़ भूल जाता है. ऐसे वो छोटा बच्चा यहाँ वहाँ भाग रहा था और बार बार पेरेंट्स क्या बुला रहे थे, कम चाइल्ड कम. ओके, सो वो हो गया, कम चाइल्ड कम. दे कॉल टू द चाइल्ड who had gone running in the wild capers. Capers means again जो ट्रीज होते हैं ना तुम्हारे अराउंड द बनियान ट्री, ट्रीज के ऊपर केपर्स एक तरह के क्रीपर्स भी होते हैं, वेला. एंड गैदरिंग हिम अप they took the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields. अभी रास्ते में है वो, उन्होंने बच्चे को उठा लिया और वो वाइंडिंग मतलब नैरो और ऐसे जो पगडंडी होती है ना, वैसे वो
और पगडंडी लेके, फुटपाथ लेके, they started walking towards the fair. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs पे बहुत सारे लोग दिखे, यानी कि क्राउड दिखा, बहुत सारे लोगों का क्राउड दिखा. Converging to the whirlpool of the fair. अभी एकदम फेयर के पास आ गए तो बहुत सारे लोग चलते चलते एकदम से फेयर में वो लोग पहुंच गए. जॉइनिंग, बहुत सारे लोगों के साथ दे जॉइन द फेयर. फुटपाथ में से लोग चलते चलते फेयर को ज्वाइन किए. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. एक बार तो attraction भी था लेकिन डर थोड़ा सा. he was repelled, he was kind of he did not like because it was too crowdy. बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अभी देखो, एक बार फेयर एंटर करने के बाद उसको क्या क्या चीज़ें देखी वो अलग से मार्क करना, ठीक है. सबसे पहले स्वीट मीट सेलर, उसको सबसे पहले कौन दिखा? स्वीट मीट सेलर. तो वो क्या क्या बेच रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये थोड़ा याद रखना, जलेबी भी है. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. स्वीट्स के ऊपर कभी कभी सिल्वर की पतली सी लीफ लगा, उसमें फॉइल बोलते हैं उसको, सिल्वर फॉइल लगाया हुआ होता है. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड. वो देखता ही रह गया. ही वॉज लुकिंग कॉन्स्टेंटली ओपन आइड. ही वॉज वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू इट्स and his mouth started watering. So his mouth watered for burfi. What did he want? He wanted burfi. What was his favorite sweet? Burfi. So he said, I want burfi. He slowly murmured. अभी उसको पता है कि कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि पापा क्या करने वाले हैं? मना करने वाले हैं. इसलिए वो ऐसे बोलता है very slowly. हाँ? But he half knew as he begged that his plea, his request would not be heeded, would not be agreed to, would not be satisfied because his parents would say he was greedy and they would refuse him. So without waiting for an answer he moved on. अब इसको आदत हो गई कि कुछ भी मांगेंगे, मना करेंगे तो एक बार ऐसे बोलते कि आई वांट बर्फी और फिर चला जाता है आगे. फिर उसको दिखता है फ्लावर सेलर. हॉकर्स होते हैं, वो अपना आवाज़ लगाते होते, तो हॉकर आवाज़ लगा रहा था. हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. तो गुलमोहर का गार्लैंड वो बेसिक, गुलमोहर का ट्री यू मस्ट हैव सीन. So bright reddish color flowers, it's a huge tree. तो गुलमोहर के फ्लावर्स का भी क्या बनाया हुआ था वहाँ पे? गार्लैंड, हार बनाया हुआ था. The child seemed irresistibly drawn. उसको वो चीज़ भी अट्रैक्ट कर गई. वो बास्केट ऑफ फ्लावर को देख के जहाँ पे एक बहुत सारा हिप पड़ा हुआ था, बहुत सारे हार पड़े हुए थे. हाफ मर्मर्ड I want that garland. अभी मन मन में ही बात करता है because he knows कि they are going to say no and without waiting for an answer he moved on. फिर हो गया. उसके बाद ये गार्लैंड का हमने देख लिया. गुलमोहर का नाव. A man stood holding a pole of yellow, red, green, purple balloons. Now which child will not be attracted to balloons, right? So the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. Very nice silky colors थे. कौन कौन से? येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल. तो ही वॉज, ये रेनबो ग्लोरी उसका अट्रैक्शन हो गया उसको देख के. ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग टू मच डिज़ायर टू possess them, to have them, to get them. But he well knew his parents would never buy him balloons because they would say he was too old to play with such toys. So they always had an excuse ना. So he walked on further. फिर उसने कुछ बोला ही नहीं, आगे चला गया. फिर उसको दिखा स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर के पास क्या होते हैं? स्नेक्स होते हैं. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तो वो फ्लूट बजाते हैं स्नेक चार्मर और वो उसकी तरह से स्नेक होते हैं, वो हिलते हैं. His head raised in a graceful bend like a neck of a swan. तो वो उसने अपना हुड ऐसे, कोबरा कैसे हुड दिखाता है ना, वैसे वो स्वैन की तरह उसने अपना सिर उठा लिया. While the music stole into the invisible ears, उनके कान नहीं दिखते लेकिन एक्चुअली उनको सुनाई देता ही नहीं है, जस्ट वाइब्रेशंस वो कैच करता है. Like gentle rippling of an invisible waterfall. वाटरफॉल के रिपलिंग की तरह वो वाइब्रेशन कैच करके they kind of sway to the music.
The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had had told him not to go there. उसको क्या बोला जाएगा? Forbidden him to hear such coarse music, loud music उसको बोला जाता है. ऐसे parents बोलते हैं. They had not given him the permission to go near the snake charmer. So not getting permission is being forbidden. और वो कोर्स म्यूजिक, लाउड म्यूजिक के लिए वो मना करते. और मेन खतरा क्या है? स्नैक्स का. इसीलिए ही प्रिसीडेड फर्दर, ही वेंट फर्दर. फिर उसके बाद उसको दिखा राउंड अबाउट. राउंड अबाउट इज द स्विंग, जिसको तुम क्या बोलते हो? जो मेरी गो राउंड बोलते हो ना, वैसे वो राउंड अबाउट है. जायंट व्हील बोलते हैं एक्चुअली उसको. वो जायंट व्हील में भी उसको बैठने का मन हुआ. उसमें बैठ के वुमेन एंड मेन वेर शाउटिंग. बैठता है, जोर से चलता है, एवरीबडी shrieked, shouted and cried, because when you are afraid you want to release that emotion, then you have to cry loudly. तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे राउंड अबाउट पे. तो किसको जाना था राउंड अबाउट पे? आवर लिटिल चाइल्ड. दिस बॉय also wanted to go to enjoy that whirling movement. whirling मतलब गोल गोल घूमने वाली मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए उसको भी जाना था. अब देखते कि क्या वो जा पाया. ठीक है, राउंड अबाउट उसको दिखा. फिर क्या हुआ? सो ही सेड कि आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, बट देयर वाज ही वाज लुकिंग बैक फॉर एन आंसर. ओके, ये यहाँ पे. So there was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in the whirling motion, shrieked and cried in dizzy laughter. Everybody was enjoying the roundabout, that merry-go-round. The child watched them intently and then he made a bold request. This time उसने मन ही मन में नहीं बोला, उसने जोर से बोला. उसको यहाँ तो बैठना ही था. तो उसने क्या बोला? I want to go on the roundabout please father mother. अभी प्लीज भी जोड़ दिया कि प्लीज प्लीज मुझे इसमें तो बैठने ही दो. But there was no reply. He turned and he looked here and there ahead of him, but there was no sign. He looked behind, he looked ahead, but there was no sign. His parents were not there. अभी उसको पता चला कि he is lost. राउंड अबाउट देखते देखते वो ज़्यादा रुक गया. पेरेंट्स आगे चले गए, है ना. And he was lost and he asked them कि he wanted to sit on the roundabout, but he did not get any reply because the parents were not there. तो अब उसको रोना आ गया. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. Now he is very much afraid कि अरे बाप रे इतनी भीड़ में. Now he is alone. So his throat became dry with fear. Full deep cry rose within his dry throat. लेकिन वो रो भी नहीं पाया, इतना वो डर गया है. और वो भागा और यहाँ वहाँ ढूंढने लगा. मदर, फादर. Tears rolled down his eyes, hot and fierce. जोर जोर से नहीं रो रहा, लेकिन आँख में से आंसू बह रहे. एकदम वो क्या हो गया? उसका चेहरा गरम गरम हो गया. His flushed face was convulsed with fear. His was flushed क्यों? Reddish है इसलिए. तो convulsed means it was caught with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other. यहाँ he was totally when you are very much afraid and you don't know what to do, then you are in panic. So he was panic stricken, he was in panic. बहुत ज़्यादा डर गया था. He did not know what to do. So he ran from one side then to the other. Hither thither, everywhere he ran, in all directions. Hither thither means all directions, everywhere. यहाँ वहाँ वो भागा. No, knowing not where to go. अब क्या करना है उसको पता ही नहीं है. बस एक ही वो रट लगा बैठा है. Mother, father, he wailed, and now he started crying. His yellow turban came untied. अभी रोते रोते उसके सर के ऊपर जो टर्बन बांधा हुआ था येलो कलर का, it also got untied. तो वो भी निकल गया, खुल गया. His clothes became muddy. तो वो गिर भी गया होगा रोते रोते. और अपने आँख उसका चेहरा भी पूरा फुल ऑफ टीयर्स है. हाथ भी उसके गंदे हो गए होंगे वो गिरेगा तो पूरे उसके क्लोथ्स वगैरह उसने कैसे बना लिए? मडी हो गए. तो नाउ ही वॉज हैविंग अ वेरी बैड टाइम and he was not able to find his parents.
Having run to and fro in a rage of running for a while, बहुत टाइम तक वो एक रेज से, एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या आ गया है, एक तरह का अंदर से ही वॉज इन टू मच इमोशन एंड ही वॉज रनिंग हियर एंड देयर वेरी फास्ट. तो वो एक रेज से, गुस्से के लिए रेज वर्ड है यहाँ पे, वो गुस्सा नहीं है. दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द इमोशन दैट दे वांट टू शो. He stood defeated. But did he succeed in finding them? No. He stood defeated. He could not find them. His cries suppressed into sobs. अभी रो रो के थक गया. And his cries were now suppressed. दब गए. They were now not loud. They came into sobs. Sobbing किसको बोलते हैं? जो जोर से नहीं रोना होता है, उसको क्या बोला जाता है? Sobs. So now he was sobbing. At little distances on the green grass he could see. Through his filmy eyes, filmy, है ना? ये filmy eyes है उसके, तो उसमें से वो filmy क्यों हो गया? क्योंकि आंखों में आंसू है. Men and women talking. So he could see other people talking, enjoying, but he could not see anywhere his parents. So he stood there defeated. His cries were no longer loud. They were like sobs. वो ऐसे धीरे धीरे रो रहा था, उसको ऐसे रोना आए जा रहा था, रुक नहीं पा रहा था, उसको बोला जाता है सॉब्स. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. वो दिख रहा था, कहीं पे भी पेरेंट्स दिखे, लेकिन वो सबके कपड़े, सबके चेहरे देख रहे, but there was no sign of mother and father among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उनका हंसना बोलना भी उसको अच्छा लग नहीं रहा था. He ran quickly again, this time to the shrine where people seemed to be crowding. अब एक shrine के पास चला गया. Shrine is temple. Every little inch of space here was congested with men. बहुत ज़्यादा भीड़ थी. Congested हो गया मतलब there was no place. इतनी ज़्यादा लोग थे, उसको congested बोलते हैं. But he ran through people's legs. इतना छोटा था, लोगों के पाँव के बीच बीच से निकल के वो जाने लगा. तो ही sobbed lingering, उसका रोना चालू था. क्या था? मदर फादर. ठीक है. तो इस तरीके से वो क्राउड में घुस गया ढूंढने के लिए. तो अभी वहाँ पे क्या हो गया देखो. ठीक है, यहाँ से देखते हैं. श्राइन मंदिर में वो चला गया. कंजेस्टेड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे. मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द श्राइन हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मंदिर के एंट्रेंस पे भीड़ थी. मेन जो सेल्ड ईच अदर, दे पुश्ड ईच अदर. मंदिरों में ऐसा होता है ना कभी, आजकल तो चलो अच्छा था ऐसा तो नहीं बोलूँगी, बट आई मीन because of a precautionary measure all the temples were closed. क्योंकि ये भीड़ करता है ना इस तरह से, तो क्या होता है, कोरोना जैसा डिसीज बहुत फैल जाएगा. अब तो फिर से खुल रहे हैं मंदिर, देखो अब क्या होता है. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes. उसको अभी सब कैसे लगने लगे, लोग डेंजरस लगने लगे, because he was very afraid. hefty shoulder, broad shoulder लोग थे, तो वो बेचारा एक छोटू सा बच्चा था. The poor child struggled to thrust away between their feet. उसके पाँव में से निकलने के लिए वो कोशिश कर रहा था. knocked to and fro by their brutal movements. पाँव की मूवमेंट से, उसको धक्कों में से वो बेचारा यहाँ वहाँ फेंका जा रहा था. He might have been trampled underfoot. You know how risky it is to go inside a congested area where there are too many people. Sometimes you may get trampled. उसको क्या बोलते हैं, कभी कभी स्टैम्पीड भी हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं. तो एक छोटा सा बच्चा तो पाँव के नीचे आ ही सकता है. तो there was a risk of getting trampled underfoot. Had he not shrieked at the pitch of his voice. लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसलिए लोगों का ध्यान गया, नहीं तो गिरता तो लोग उस पर से चल के भी चले जाते. Mother, father, a man with a surging man in the surging heard his cry. जो आगे जा रहा था एक इंसान, उसने उसका क्राई सुनी. Stooping with great difficulty. इतनी भीड़ में वो बच्चे को उठाने के लिए ही bent. To stoop is to bend. But उसको बहुत डिफिकल्टी हुई, फिर भी वो झुका और उसने बच्चे को जल्दी से उठा लिया, नहीं तो वो बच्चे को लग जाती. Lifted him in his arms. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जल्दी से अपने आर्म्स में उसको उठा लिया. He was a good man. How did you get here, child? Whose baby are you? Now he was worried. Okay, he knew he was lost.
लेकिन उसको वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा, वो एक ही चीज़ बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर. ओके, तो यहाँ से हमको करना है, ठीक है. आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर. द मैन ट्राइड टू सूद हिम, ही ट्राइड टू क्वाइटन हिम by taking him to the roundabout. अभी जहाँ जहाँ से ये लोग पहले गुजरे वो सब उसी जगह पे ये इंसान उसको वापस लेके जाता है. तो अभी उल्टा जाएगा, है ना. जो एंड में लास्ट बच्चा अपने माँ बाप के साथ कहाँ पे गया था, राउंड अबाउट में. फिर ये मंदिर है, अब ये मंदिर से पहले राउंड अबाउट तक जाते हैं. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. राउंड अबाउट मेरी गो राउंड का वो हॉर्स है, उसके ऊपर वो बोलते हैं यू वांट टू सिट. उसको वो रोना उसका बंद करना चाहता है. ही जेंटली आस्क्ड, ही वाज अ काइंड मैन. बट as they approached the ring of the roundabout of the merry-go-round, he asked, "You want to sit on the ride on the horse?" The child's throat tore into 1,000 sobs. अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस मेरी गो राउंड में. वो राउंड अबाउट के लिए पहले जिद कर रहा था, अब उसको कुछ नहीं चाहिए. अभी उसको सिर्फ चाहिए क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. उसके बाद कौन दिखा, स्नेक चार्मर. तो वहाँ पे द कोबरा वॉज स्वेइंग, कोबरा वॉज डांसिंग टू द ट्यून ऑफ द स्नेक चार्मर. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स. कुछ नहीं चाहिए, नो नो नथिंग. क्या चाहिए, ओनली आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उसने अपने हाथों से अपने कान बंद किए क्योंकि उसको कुछ नहीं सुनना था. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. अब वो इतने प्यारे बलून्स भी उसको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहे. थिंकिंग दैट ब्राइट कलर्स ऑफ बलून वुड डिस्ट्रैक्ट. उसका मन थोड़ा सा रोने में से हट जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. यू नो, ही विल, हिज अटेंशन विल गो अवे फ्रॉम द मदर एंड फादर एंड ही विल लुक एट द कलर्स ऑफ बलून. ऐसे वो इंसान को लगा, लेकिन वो उसकी अटेंशन बिल्कुल डिवाइड नहीं हुई. और ही कुड नॉट क्वाइटन हिम. लेकिन वो चाहता था कि उसकी अटेंशन दूसरी जगह जाए, उसको डिस्ट्रैक्ट करे, इसलिए वो बलून्स के पास ले गया. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही persuasively asked. He wanted to persuade him, he wanted to change his mind, but the child turned his eyes from the flying balloons. अभी उसको बलून्स भी नहीं देखने हैं. He just sobbed. I want my mother, I want my father. Could he enjoy anything without his parents? No. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अभी वो garlands के पास चला गया. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? लेकिन वो गुलमोहर की garland भी उसको अच्छी लगी नहीं. The child turned his nose away from the basket. वो smell भी उसको नहीं चाहिए. Reiterated his sob. Again he started crying. Again he gave the sob. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge. Disconsolate charge, जिसका उसने चार्ज लिया हुआ है, वो कौन है, द चाइल्ड. डिसकंसोलेट, जिसको वो कंसोल नहीं कर पा रहा, समझा नहीं पा रहा, तो उसको थोड़ा सा हंसाने के लिए वो कहाँ पे ले गया, वो ही वांटेड टू बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. तो उसके स्वीट शॉप के पास ले गया. The man took him to the counter of the sweet shop. उसको क्या पसंद था, you remember? बर्फी. But अब उसको क्या चाहिए? Nothing, only mother and father. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. I want my mother, I want my father. So this beautiful story is written by Mulkraj Anand. Now the thinking part begins for you. You need to think what would be the end of this story. That you need to think about कि do you think कि this story has ended here, or do you think कि the child must have found his mother and father. इसके बारे में तुमको सोचना है, ठीक है. तो you start thinking कि क्या हुआ होगा end में, and then when we have a Zoom meeting, I'm going to ask you to tell me your end of the story. Okay. तो I'm sure कि the man must have helped him to find the parents. You also think how it must have happened, what must have happened in the end when we meet on the Zoom meeting. Thank you. So we are going to stop here now. Okay. Hope you enjoyed the story. And whatever the writing part I will be sending you. Okay. You have to copy it down in your notebooks. I'm sure you will have a
classwork and you will have a homework. So whatever I will send, you will copy it down in the classwork, and whatever homework I will give, you will do it in the homework notebook. Okay, bye.